غلام گئے رسول کے غلامی رسول میں موت بھی قبول گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشخبری، خوش آمدید آپ سبھی کو میرے اس چینل پر. آپ آئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا. آج کی جو چیپٹر وہ پارٹ تختی ہے بہت امپورٹنٹ اور اہم ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ کوئی نہیں بتایا ہوگا. بہت جو مدرسے میں جو داخلہ کروا لیتے ہیں، جو مدرسے میں ہی رہتے ہیں، ان کو بھی پڑھایا بہت مشکل جاتا ہے کہ یہ ہے کیا. لیکن اگر آپ وہاں سے کو اچھی طریقے سے اس میں کچھ وقفہ ہوتا ہے، رکنے کی جگہ ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، تو اس میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہاں پہ ہمیں سانس توڑنا چاہیے، کہاں پر سانس نہیں توڑنا چاہیے، کہاں پر پڑھنا چاہیے، کہاں پر نہیں پڑھنا چاہیے، کہاں پر رکنا چاہیے، کہاں پر نہیں رکنا چاہیے، کہاں پر کتنی دیر رکنا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے جو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو آج کی تو تختی نمبر ہے 26 جو ہے علامت وقف کی علامت ہے کہ یہ علامت وقف کی علامت. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ قرآن شریف جب پڑھتے ٹھہریں گے تو بیچ میں توڑے یا نہ توڑے. جیسے آپ کو تا آ گیا، بیچ میں چھوٹا سا تا آیا تو قرآن شریف میں، جیم آ گیا، زا آ گیا، سواد آ گیا، صلی آ گیا، صل آ گیا، ہے نا، قوف آ گیا، وقف آ گیا. یہ سب جب آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیز قرآن شریف میں بیچ میں آ جاتا ہے نا. آپ دیکھیں گے جب غور سے پڑھیں گے نا تو چھوٹی چھوٹا بنا رہے گا، الف با تا جیم زا سواد، ایسے لام، اس طریقے سے بنا رہے گا. تو آپ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ دیا کیوں ہے. تو یہی ہوتا ہے ان کے گرامر، تختی، پارٹ، چیپٹر وہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ سانس وہاں پر توڑیں گے، کتنا توڑیں گے، کیوں توڑیں گے، کس لیے توڑیں گے، اور یہاں پر توڑنا چاہیے یا نہیں چاہیے. جب توڑنا چاہیے تو کتنا دیر توڑنا چاہیے، کیا یہاں پر سانس ٹوٹنی چاہیے یا نہیں چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ صرف تھوڑا سا بچوں کو سمجھ نہیں پاتے، پڑھا نہیں پاتے، سمجھا نہیں پاتے بچوں کو، تو بچے بھی اسی طریقے سے قرآن سے پڑھ لیتے ہیں. جہاں مرضی کرتا ہے، جہاں من کرتا وہاں سانس توڑ دیتے ہیں، جہاں من چاہتا وہاں ٹھہر جاتے ہیں، جہاں من چاہتا وہاں پہ کچھ کر لے، مطلب اپنے آرام سے وقفہ علامت کر دیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اب یہ جو دیا ہے وہ قرآن شریف میں جو علامت یہ دیا ہے، یہ گول نشان دیا، علامت تو دیا ہے، جم دیا ہے. آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا آپ کو دکھانے کی. آپ کو دکھ رہا ہوگا میرے میں سے، اگر اللہ کوشش میں کروں گا، پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھے. یہ جو جم ہے، چھوٹا سا جم ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا. میں دیکھتا ہوں، زوم کر کے دیکھتا ہوں کہ آپ کو دکھے گی نہیں، ہے نا. یہ دکھ رہا ہوگا آپ کو جم، ہے نا. اسی طریقے سے جم آئے گا، کہیں پر اور سا ورڈ آئے گا. یہ دیکھو سلے، ہے نا، سلے. آپ کو دکھ رہا نہیں دکھ رہا نا، مجھے چھوٹا کرنا. آپ کا یہ اپنا چینل GNB یہاں پر دیکھو، یہاں پر بی کے بعد ہے، بی کے بعد سلے آئے، سلے، ہے نا، زاپ آپ دونوں ہے. یہ سب جو چیز آئے گا نا تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے کہ یہاں پر جم دیکھو، جم زیادہ آتا ہے وہاں پر. میں پورا وقفہ بتاؤں گا آپ انشاءاللہ. 15 منٹ ہو جائے، 20 منٹ ہو جائے، نماز کی ٹائم ہو رہی ہے، جانے پڑے گا. اب بتاؤ یہ سب جو آتا ہے نا تو آپ کو کہاں پر کیا کرنا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیے، یہی علامت ہے جب قرآن شریف میں آئے تو یہاں پر کتنا دیر ٹھہرنا چاہیے. دیکھو میں پورا تو نہیں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو جائے میرے سبق، پارٹ اور چیپٹر، کہ آپ سمجھ جائیں بس. وقف کے مارنا ٹھہرنا یعنی قرآن پاک وقت پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے. اس لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے. قرآن مجید میں یہ جگہ بنی ہوتی ہے کہ کہاں پر ٹھہرے، کہاں پر نہیں ٹھہرے. لکھا کیوں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے تو وہ کیوں ٹھہرنا چاہیے، مد لازم تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے کیسے، کچھ ورڈ ہوتا ہے، الفاظ ہوتا ہے، تو وہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. میں گھر جاؤں گا، میں گھر. اب یہ پورا بات تو پوری نہیں ہوئی. میں گھر کیا، میں گھر میں جاؤں گا، میں گھر میں لڑائی ہوا. بہت سارے ایسا بات ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے جب تک اس بات کو پوری نہیں کی جائے. میں گھر جاؤں گا، یہ بات پوری ہوئی، گھر جائے گا، اس کے بعد کیا کرے پتہ نہیں. لیکن میں گھر، جب میں گھر ہو گیا تو اس کے بعد آگے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں گھر میں جا کے کھانا کھائے گا، لڑائی کرے گا، گھر کس کا گھر جائے گا، کس کا نہیں جائے گا، تو یہ پتہ نہیں چل رہا. تو اسی کے لیے بات کو پوری ہونے کے لیے کہیں کہیں پہ یہ آیات کے بدلے میں یہ دیا جاتا ہے کہ بات تھوڑی سی پوری ہو گئی. اب گھر میں جا کے کھانا کھائے، لڑائی کرے، مستی کرے، کچھ بھی کرے، آگے کا ٹاپک ہے، لیکن گھر یہ جائے گا.
तो इसीलिए ये सब चीज़ों को देता है कि यहाँ पर सांस तोड़ दे, फिर छोटी छोटी सांस तोड़ दे, कहाँ पर तोड़ना चाहिए कहाँ पर नहीं तोड़ना चाहिए। वक्फ, इस अलामत को आयत कहते हैं, यहाँ ठहरना चाहिए, यहाँ पर ठहरना चाहिए अलामत पर। तो वक्फ मुतलक, क्या नाम इसका, वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। जिम, यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना भी जायज़ है। जिम आए तो ठहर भी जाए, सांस अगर नहीं है तो, अगर सांस है तो आगे पढ़ सकते हैं। जा, यहाँ ना ठहरना बेहतर है, वैसे इजाज़त है। स्वाद, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुखसत है, मतलब रुखसत। अब रुखसत समझेंगे कैसे, यहाँ से पढ़ लिए तो फिर दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे वक्फ करने का, वक्फ के माने ठहरना, तो ठहरना पढ़ दी ना। अब ठहरना यानी कुरान पाक, मतलब कि उस वर्ड को, थोड़ी सी वर्ड को फिर दोहरा ले। तो इसे क्या कहते हैं, अगर सादा है तो यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर थक कर ठहर जाए तो रुखसत कर ले, मतलब वापसी से दोबारा पढ़ ले या सल ले, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ये मैं कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, यहाँ तक, स्वाद तक। अब सल्ले, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। अब जब वहाँ पर सल्ले आए तो वहाँ पर आपको क्या बोला, मिला के पढ़ो, है ना, वहाँ पर रुकना बिल्कुल भी नहीं। सल आए, यहाँ ठहरना बेहतर है। अब सल और सल में फ़र्क कर लो, अगर यहाँ के साथ आए तो यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, अब सल आए तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है, मतलब अच्छा है, ठहर सकते हैं। अगर सांस आपको नहीं तो ठहर सकते हैं। यहाँ पर ठहरना मिलाकर पढ़ना बेहतर, मिलाकर पढ़ें, अगर सांस टूट गई दोबारा मिला ले, है ना, इस तरीके से होता है। तो आपको बहुत मुश्किल होगा कि मेरे में से, तो मेरी ज़िंदगी में तो कोई, जब मैं कारी की पढ़ाई कर रहा था कुछ एक दो किताब, तो उसमें बताया गया था, उसमें भी नहीं बताया गया था कि कहाँ पर ठहरना कहाँ पर नहीं ठहरना है। उसके बाद मैं कोशिश करते रहा, किताबों पढ़ते मुताला करते रहा, करते करते मुझे कुछ नॉलेज, कुछ जानकारी हो गई। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, आप लोग महरूम नहीं रहे, आप लोग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जिस तरीके से कोशिश मेरी जारी रहती है कि आप लोगों को कुरान की एक एक चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ भी करते रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं बोल कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसलिए कि मैं शेयर आगे पहुँचा दूँ, इसलिए कि उनको भी फ़ायदा हो जाए। मेरा तो काम है, मैं पढ़ाऊँगा सिखाऊँगा ज़िंदगी भर, जब तक मेरी सांस अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रहकर दी है, इंशाअल्लाह मैं पढ़ाता रहूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कुरान शरीफ से नावाकिफ़ है, इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते पढ़ाने वाले, या पढ़ा पाते तो कुछ कमी रह जाती है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी हर पूरी पढ़ाने के बाद पूरी कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन इंशाअल्लाह मैं फिर से कोशिश करता हूँ, जब तक मुझे ये नहीं लगा कि हर एक इंसान के अंदर कुरान शरीफ के अच्छी तरीके से ग्रामर के साथ, कवायद के साथ जानकारी नहीं हो गई। इंशाअल्लाह मैं आखिरी सांस तक, कब्र से जाने से पहले इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। तो हमने पहुंच गए थे सल तक। कौफ, जब छोटा सा कौफ आए तो यहाँ ठहरना नहीं चाहिए। अब यहाँ बता दे ठहरना नहीं चाहिए। वक्फ, यहाँ ठहर जाओ। वक्फ, कफ, कौफ फाम अगर मिलकर आ जाए, अगर आप पढ़ रहे हैं, कहीं पर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर कौफ आ गया, जिस तरीके से जिम में दिखाया था, पहले में दिखा दिया हूँ, अगर वहाँ पर इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर ठहर जाओ। तो मतलब यहाँ पर बात पूरी हो रही है, तो इसीलिए लिखने वाले ने, कातिब ने आपको ठहरने की इजाज़त, मैं ये नहीं बोलूँगा कातिब ने कुरान शरीफ को बोला, लेकिन यहाँ पर बात, क्योंकि जो लिखने वाले जो कातिब लिखे हैं, उसने तर्जमा, तफसीर, खुलासा कुरान शरीफ करके समझ कर उसके बाद ये आपके सामने पेश किया है। बहुत मेहनत करने के बाद आपको छोटी सी किताब लग रही होगी, आपको छोटी सी कवायद लग रही होगी, आपको छोटी सी चैप्टर और पन्ना लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे इतना मेहनत है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजार देंगे तो वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को लगा कि छोटी सी किताब लोगों ने कहा था 20 रुपये में लेगा, क्योंकि 20 रुपये कोई कीमत नहीं होती है। और 20 रुपये की कीमत इसलिए कर दिया गया कि हर एक के दिल में कुरान शरीफ की मोहब्बत पैदा हो जाए, कुरान शरीफ समझ जाए, कुरान शरीफ पढ़ ले। लेकिन हम लोग इसकी अहमियत को समझ नहीं पाते कि जो लिखने वाले ने, कातिब ने, जो जिस तरीके से लिखा है हम लोग तक पहुँचाने की कोशिश किया है, और हम लोग तो सोचते हैं कि जो भी कारी है, जो हाफिज है, जो आलिम है, वो लोगों तक पहुँचाए कि कुछ भी दिक्कत ना आ जाए। ऐसी बात नहीं कि फ्री में आप ले लोगे तो उसकी अहमियत नहीं होगी, कि क्यों जो कातिब छापते हैं, जो करते हैं, तो वो तो ठीक है कि आप लोग को छाप के दे दिया कि आपकी इसकी कीमत 20 रुपये गुटखा खा के फेंक देते हैं, किसी को भिखारी दे देते हैं, तो इसलिए इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन जिसने इस किताब को लिखा है, बनाया है,
वो कितना मेहनत किया है, क्योंकि ऐसे नहीं कि हाँ भाई यहाँ पर ये वक्फा कर दो, नहीं, उस आयत को समझा, उस आयत को दोबारा समझा, उस दो आयत को तफसीर किया कि यहाँ पर बात मुकम्मल हो रही नहीं है, यहाँ पर लोगों को ठहरना चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पर लोगों को रुकना चाहिए या नहीं चाहिए, कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर मिला कर पढ़ना चाहिए। जबकि बात पूरी हो जाए तो कुरान शरीफ सही से पढ़ ले तो समझ जाए। हम लोग, ये बात अलग है कि आप कुरान शरीफ नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पढ़ने की ताकीद की गई है, बताया गया है, लोगों ने मेहनत करके आप लोग तक पहुंचाया है, तो आप लोग तो कम से कम समझ के पढ़ सकते हैं। तो ये अलामत है कि कहाँ पर हमें कुरान शरीफ को रुकना है, कहाँ पर नहीं रुकना है, कहाँ पर मिला कर पढ़ना है, कहाँ पर सही सही और मिला कर रुखसत करके पढ़ना है, और कहाँ पर फास्ट पढ़ना, वहाँ पर रुकना भी नहीं है। तो ये है, इस तरीके से बहुत कम आएगा मेरे में से पूरे कुरान में, दो जगह एक जगह ऐसे ही है। आयत कोफी है, मसलन आयत के हुक्म है, ये आयत के हुक्म है, मतलब कि यहाँ पर ठहर जाएंगे, ये आयत के हुक्म है। एक दो जगह है मेरे कुरान शरीफ में, मेरे अंदाज से, मेरे जितने उम्मीद है कुरान शरीफ है, मेरे से एक या दो जगह है। मीम, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। अब यहाँ पर मीम क्या दे दिया है, वक्फ लाजिम। लाजिम क्या होता है, जो बहुत ज़रूरी होती है, कि मतलब यहाँ से बात पूरी हो गई है, यहाँ पर रुक ही जाओ। जिस तरीके से आयत के एक अलामत होती है कि यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर मिला के पढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं पर रुकना चाहिए। लेकिन मीम के वक्त अगर मीम आ जाए कुरान शरीफ में, जिस तरीके से मैं बताया था जीम आता है, वहाँ पर मीम भी आता है, बहुत कम आता है लेकिन आता है। मीम अगर आ जाए, छोटी सी मीम बन के आएगा, यहाँ पर जिस तरीके से ना ये कट कुट बना हुआ, तो इस तरीके से मीम बन के आता है, तो मीम ये वक्फ लाजिम की अलामत है, इस पर जरूर ठहरना चाहिए। आपको समझ में आ गई, यहाँ पर जरूर ठहरना चाहिए। क्यों ठहरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कुरान शरीफ जो समझने वाले, जो पढ़ने वाले हैं, जो तफसीर को, जो तर्जमा को समझ गए, तो वहाँ पर इसलिए बोले कि यहाँ पर लाजिम है, यहाँ पर बात पूरी हो गई, यहाँ पर दूसरी टॉपिक आगे पूरी होगी, इसलिए यहाँ पर रुक जाओ। कुछ भी आ जाए, जैसे यामलून, तामलून, खबीर, बसीर, कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर रुक जाएंगे। जैसे कुछ भी, मतलब आपको मैं दिखा दूँ, मिलेगा बहुत मुश्किल है, मीम मिल नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से जहाँ पर जिम है ना, इसी तरीके से मीम भी आएगा। मीम कोशिश किया हूँ, बहुत कम है जगह पे, इसीलिए देखो जिम है, तो है, और बहुत सारी चीज़ है जहाँ पर हमें रुकना चाहिए, जहाँ पर हमें वक्फ करना चाहिए, लेकिन मीम अभी मिल नहीं रहे फिलहाल। जीम वो बहुत कम होता है, जैसे तो है, छोटा सा ता, ध्यान देखिए, आप ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, ये रहा जीम, ये रहा तो यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता दिया हूँ। अब मीम खोज रहा था लेकिन मीम मिला ही नहीं, बहुत कम होते वो। अगर मीम आए तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वक्फ लाजिम की अलामत, इस पर जरूर ठहरना चाहिए, सीन या सकता, सीन या सकता। अब ध्यान दें आप, यहाँ सीन या सकता है, यहाँ किस कदर ठहरना चाहिए मगर सांस ना टूटने पाए। अगर सीन या सकता आ जाए तो यहाँ पर इस तरीके से ठहरना चाहिए कि लोगों को लगे कि रुक गया है, सांस रोकर, सांस न टूटे, और फिर दौड़ पड़ते हैं। जैसे वक़ील मन रॉक, यहाँ पर सकता आता है, कुरान में आया है, मुझे याद है, वक़ील मन रॉक। तो ये आप सीन पर या सकता है, तो यहाँ किस तरह ठहरना चाहिए, यहाँ किसी कदर ठहरना चाहिए मगर सांस ना टूटे, मतलब ऐसा टूटे कि सांस टूटे ना और पढ़ ले। वक्फ, यहाँ सकता की निस्बत ज्यादा ठहरना चाहिए और सांस भी न टूटे। वक्फा, यहाँ पर सांस भी हो, जैसे वक़ील मन रॉक, सांस टूटे नहीं। ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या न ठहरे मतलब नहीं बिगड़ता, और जहाँ इबादत के दरमियान ला हो वहाँ न ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी और फिक्र करने की जरूरत है। ये अलामत कहीं आयत पर होती है, कहीं आयत पर, कैसे गोल आयत होता है ना, वहाँ पर होती है। यहाँ ठहरना या न ठहरना मतलब नहीं बिगड़ता, और जहाँ इबारत के दरमियान ला हो वहाँ न ठहरे वरना मतलब बिगड़ेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जहाँ पर ये गोल आयत के ऊपर होगी, गोल आयत के, आपको दिख रहा कि नहीं, इसमें बताते जा रहा हूँ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, मुझे दिखनी चाहिए। हाँ, ये गोल आयत का अगर लाभ ऊपर होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ठहरे, मतलब अगर ठहर जाए तो भी ठीक, अगर मिला कर पढ़ लेंगे तो भी ठीक। लेकिन अगर ये
आयत के बीच में होगी। जैसे यहाँ पर आयत है जिसमें दिखाया जिम दिखाया था, तो दिखाया था, अगर वहां पर होगी तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर वहां न ठहरो वरना मतलब बिगड़ जाएगी। तर्जमा जो उसका तर्जमा है, जैसे घर जाऊंगा तो अब तो पर ठहर जाए तो कैसा लगेगा, तो क्या करेगा, तो ये मतलब बिगड़ जाती कि मतलब तो फिर मैं उससे मारूंगा, उससे खाऊंगा, तो फिर ये करूंगा वो करूंगा, तो ये जो मतलब बिगड़ जाता है ना, तो इसीलिए बोलता है कि अगर ये आयत पर हो तो ठहर जाओ या ना ठहरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीच इबारत मतलब इबारत का बीच में आ जाए लाम को तो उसमें नहीं ठहरेंगे। मतलब ये पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी है वही यहाँ भी है, मतलब जो पिछली अलामत में ये वाली है वहाँ पर ये भी आयत पर आ जाए तो मिला के पढ़ लेंगे या सांस तोड़ लेंगे, अगर बीच में है तो उसमें पढ़ेंगे। माँ मतलब ये कि यहाँ 3 जुमलों में से जिन 2 को चाहो मिलाकर पढ़ लो, मतलब यहाँ पर 3 जुमलों आएगा उसमें से एक को मिलाकर, मतलब ये कि यहाँ 3 जुमलों में से जिन 2 को चाहो मिलाकर पढ़ लो। यहाँ पर जुमला एक अगर शक्ल में क्लास में अगर दिखाऊं मैं बहुत कम आता है, लेकिन अगर आएगा तो यहाँ पर जुमले की तरह आता है, तो उस जुमलों को एक कैसे, एक ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आएगा, तो तीनों में से कहीं एक को मिला देंगे और 2 को नहीं मिलाएंगे। जहाँ कई अलामत हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो उस कलमा को आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस तोड़े, फिर कुछ पीछे से लौटाकर पढ़ें। अब यहाँ पर ये बताया है कि अगर आप सांस तोड़ दिए आयत पर तो ठीक है, अगर सांस में आगे अगर टूटा है तो फिर उसी अलामत से स्टार्ट करके वहां पे पढ़ेंगे। जहाँ कई अलामत हो, जहाँ कई मतलब यहाँ पर अलामत है, यहाँ पर अलामत है, छोटी छोटी आयत जो बोलते हैं, तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है, यहाँ ठहरना चाहिए, है ना। आयत के बीच में अगर आयत के बीच में सांस टूटे तो उस कलमा के आखिर हर्फ को साकिन करके सांस तोड़े, फिर कुछ पीछे से लौटाकर पढ़े, फिर कुछ पीछे से लौटाकर पढ़ने की इजाजत हमें दी गई है। तो ये आज की जो इतना इम्पोर्टेंट और बहुत अहम जो सबक है, मैं कोशिश तो ये किया था कि 10 मिनट में हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि मैं जब तक मैं नहीं समझूंगा तो लोग कैसे समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्लास में, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि आप तक पहुँचाने की, समझाने की। अब मुझे पता नहीं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझे या नहीं समझे या कुछ बाकी रह गया, लेकिन मेरी कोशिश तो ये थी कि आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ अगर कमी रह गया वो तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला मौका देगा तो इंशाल्लाह आखिरी सबक है, इंशाल्लाह उसको कल पूरा करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कुरान से भी सीखेंगे हम लोग, और इसी के कवायद के सामने रखकर इंशाल्लाह का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आपको कुरान से भी सिखाऊंगा और इसी के सामने रखकर उसे सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसमें से कुछ वर्ड या कुछ चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई होगी या डॉट लगा होगा या शक लगा होगा कि यार अलामत किसे बोलते हैं, वक्फ किसे बोलते हैं, तख्ते किसे बोलते हैं, कुछ भी डॉट लगे तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी, दोबारा बताऊंगा, तिबारा बताऊंगा, जब तक आपके दिमाग में फिट न हो जाए, जब तक मुझे ये नहीं लगे कि आप समझ गए। इंशाल्लाह मैं दुआ समझाता हूँ। मैं गुलजार नदवी कुरान सोन से, आप साथ दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उदास फिरते हो क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं। आओ ऐ मुसलमानों, मस्जिदें बुलाती हैं।